You are watching BUTV Karachi. Assalamu alaikum. I am Dr. Shaista Mahmood, Senior Assistant Professor at the Department of Earth and Environmental Sciences, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के एक रिसेंटली लॉन्च प्रोग्राम BS इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS के बारे में कुछ मालूमात फराहम करूँगी। मेरे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट और हमारे एलुमनाई एक्सपर्ट और स्टूडेंट भी मौजूद हैं। BS इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS जो है ये एक 4 इयर्स का बैचलर्स प्रोग्राम है। इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि कराची में ये वाहिद इदारा है या वाहिद हमारा डिपार्टमेंट है बहरिया यूनिवर्सिटी में जो 4 साल का BS का प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS। इसमें अगर स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आके एडमिशन लेते हैं उनको हम मेरिट स्कॉलरशिप भी अप्लाई देते हैं एज़ पर BU पॉलिसी। उसके साथ साथ 15 अदर स्कॉलरशिप्स भी हैं, यानी अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल होंगे 15 स्कॉलरशिप्स लेने के लिए। साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है इसमें डिस्काउंटेड एडमिशन फ़ी का भी ऑप्शन गिवन है। सो मैं गुफरान अहमद नईम जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे उनको बुलाती हूँ इस प्रोग्राम में। आप कुछ इसके बारे में बोलना चाहेंगे और फर्दर आप इस प्रोग्राम को आगे लेके चलिए। Assalamu alaikum everyone. I'm a final year student at Bahriya University and in the Department of Earth and Environmental Sciences. So GIS, it's actually a very important field for further development and for anything. For example, let's say urban development. It's an important factor whenever we develop any sort of city or any sort of urban or rural area. So for example, by using GIS, we are able to map out exactly where there are empty spots or if there are any space which is already taken up. Other examples are glaciers. We can't exactly go to the glacial spots. Therefore, by using GIS tools and by using remote sensing, which is basically using satellite data, we are able to use this data and we are able to see how much glacier has been melted, how much glacier is being subsidized, how much glacier is moving from one spot to another. So by these different tools, we are able to see what basically stuff that is happening from one area to another area. Another example are we are able to map out landslide hazard areas. We are able to see how much deforestation has taken place. And we are able to also see how much coastal area has been subsidized, has been gone underwater. These are just some examples about which we are able to use GIS tools and use remote sensing in the current era. Now with us we have 2 important guests who are also experts in the GIS field. First we have Mr. Bassam Nasir. So please introduce yourself. Assalamu alaikum everyone. I am Bassam Nasir. I am an alumni of Bahriya University. Currently I am working as a research officer at the National Institute of Oceanography. It is a government organization. Apart from this, earlier this, I used to work at LMKR, which is a multinational company, where I used to develop GIS-based modules of a very big software. So now I will explain you about little bit about the remote sensing. So currently जो मैं अपने जो organization में remote sensing का part देख रहा होता हूँ, तो आपको पता है कि रिसेंटली कितना क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम पर आ रहा है। तो उस इम्पैक्ट को असेसमेंट करने के लिए फर्स्टली रिमोट सेंसिंग बेसिकली होता है कि हाउ वी कैन विदाउट टचिंग एन ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समथिंग। दिस इज बेसिकली रिमोट सेंसिंग। सो अगर आप फील्ड पर जाके एक 100 ऑफ किलोमीटर्स ऑफ एरिया को उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने लगेंगे तो इट इज़ वेरी कॉस्टली। तो इसीलिए रिमोट सेंसिंग टेक्निक ऐसी है जिसमें हम सैटेलाइट डाटा यूज़ करके we can evaluate or assess the environmental impact or the hazard assessment so without going on the field। तो उससे हमारा एक तो कॉस्ट हमें बचती है काफ़ी ज़्यादा, और एक उसकी असेसमेंट हम फॉर्मर डाटा फॉर सपोज अगर वी हैव एन इमेज ऑफ 2001 एंड 2023,
सो हम उसके डिफरेंस निकाल कर हमें वी कैन इवेलुएट कि कितनी इरोजन हो चुकी है, कितना चेंज आ चुका है, अर्बन डेवलपमेंट में क्या है. Even currently, different organizations in every organization nationally or internationally, GIS is being used. So planning के लिए कि in future अगर flood आता है तो कितना impact आएगा. अभी recently जो पाकिस्तान में flood आए थे तो उसकी assessment के लिए भी GIS based assessment हुई थी. तो this is all I think firstly I would say this. And our next expert is Miss Elia Hassan. So please tell about your introduction. Thank you. So I'm Elia and I was a past student of Bahria University as well, and I have been working as a GIS researcher since 5 years now, 4 or 5 years now. तो सबसे पहले तो I think हमें समझने की ज़रूरत है कि GIS and remote sensing है क्या. First, remote sensing अगर देखें तो just imagine that you have a camera and you are taking pictures of the earth from space. That is exactly what remote sensing is. ठीक है कि satellites होती हैं वो earth की pictures capture कर रही होती हैं, images capture कर रही होती हैं without actually being in contact with the earth. तो रिमोट सेंसिंग हमें इसीलिए हेल्प करती है कि वी डोंट एक्चुअली हैव टू बी देयर, वी डोंट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट टू कलेक्ट एनी सैम्पल्स, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ होते हैं इनएक्सेसिबल होते हैं, पॉसिबल नहीं होता कि हम जाके फील्ड सैम्पलिंग करें. तो उसके लिए हम सैटेलाइट डेटा यानी रिमोट सेंसिंग डेटा अपना यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में हम इंडस रिवर की रिमोट सेंसिंग के लिए उसके वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए, वाटर लेवल चेक करने के लिए, पर्टिकुलरली इन मानसून सीज़न, क्योंकि हमें पता है कि 2022 में जैसे बहुत सीवियर फ्लड्स आए थे सिंध में और बलूचिस्तान की कोस्टल कम्युनिटीज़ में. तो रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हम उन लेवल्स को चेक कर सकते हैं, वाटर लेवल्स को. हम फ्लड प्रिवेंशन एंड वी कैन इवन प्रिडिक्ट फ्लड्स. We can even predict floods using remote sensing data, and then we can मतलब उस हिसाब से फिर हम प्रिवेंशन मिटिगेशन मेजर्स ले सकते हैं. जहाँ तक GIS की बात है तो GIS इज़ अ मैपिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, कोई भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वेदर थ्रू रिमोट सेंसिंग और एनी अदर जोग्राफिकल और लोकेशन डेटा दैट यू हैव, you can map it through GIS, you can store it, you can edit it, you can manipulate that data to answer your research question, and then you can display or represent it through different maps. Particularly जैसे कराची बहुत densely populated city है एक, बहुत ज़्यादा urbanization है, तो कराची में स्पेशली बहुत ज़्यादा GIS का रोल है urban planning में, because it can help urban planners and city planners to लोकेट कि हमें स्कूल्स कहाँ बनाने हैं, रोड्स कहाँ प्लान करनी है, न्यू बिल्डिंग्स कहाँ बनानी है, एंड ऑल ऑफ दैट. तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रोल है रिमोट सेंसिंग का भी और GIS का भी. अपने एक्सपीरियंस से अगर मैं बात करूँ तो इट्स नॉट जस्ट इन्वायरमेंटल साइंसेस जहाँ पे GIS का बहुत ज़्यादा रोल है. आई हैव ऑल्सो वर्कड एक्सटेंसिवली इन हेल्थ केयर में भी GIS का बहुत ज़्यादा रोल है. डिज़ीज़ स्प्रेड देखने में कि कहाँ पे डिज़ीज़ स्प्रेड हो रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, उसका बर्डन देखने में कि कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है. सो बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे GIS एंड रिमोट सेंसिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आई बिलीव. तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट दिस प्रोग्राम हैज़ स्टार्टेड, बिकॉज when I was a student of bachelor's, तो उस वक्त कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जो GIS में बैचलर्स ऑफ़र कर रहा हो. एंड that was a very difficult choice to make because I was very interested in learning GIS, but all I could get was one single course in my bachelor's जो मैंने बहरिया से ही पढ़ा था. And on the basis of that one course, I was able to navigate through my entire research journey after that. तो मेरा experience, सारा job experience मेरा GIS में था, and मेरी research सारी GIS में थी, because बहुत ज़्यादा application है GIS की पाकिस्तान में and कराची में भी बहुत ज़्यादा application है. तो I think it is very very good for students that they have this avenue now जिस पे वो आके पढ़ सकते हैं इसको और चीज़ें समझ सकते हैं. और आजकल की जो करंट प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली क्लाइमेट चेंज को अगर हम देख लें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है अब
GIS भी और remote sensing भी, because they both go hand in hand, right? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब आजकल के इश्यूज़ को navigate करने के लिए, I believe. So Dr. Shaista, let's further talk about the program details. ओके, आई विल लेट यू नो अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर आपने अप्लाई करना है तो हमारा जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 50% मार्क्स चाहिए आपको इंटरमीडिएट में. अच्छा, आपकी जो डिग्री है वो एग्जामिनेशन HSC में HSSC में आपके 50% मार्क्स हों. प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें. इसी तरह जनरल साइंस ग्रुप, DAE, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास जो है स्कॉलरशिप्स भी ऑफर है. और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं जिन्होंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में काफ़ी GIS के प्रोग्राम के बारे में बताई, तो जिस तरह से ये आपको बता रहे हैं कि एक कोर्स पढ़ के इनको इतनी अच्छी GIS की फील्ड में जॉब मिली, तो इसी तरह से जब आप पूरी डिग्री का लेके जाते हैं तो डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छी जगह पे लैंड करेंगे और बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. साथ ही साथ जब आप BS इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS करते हैं तो आपके पास बाहर जाके मास्टर्स करने के लिए भी बहुत सी ज़्यादा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं. सो आई थिंक ये एक नया जो इनिशिएटिव बहरिया यूनिवर्सिटी ने लिया है, इसको सबको अवेल करना चाहिए. एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गो लॉन्ग वे. और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे दे वुड बी एबल टू सिक्योर वेरी गुड जॉब्स, नॉट ओनली हेयर इन पाकिस्तान बट ऑल्सो अब्रॉड. उसके साथ साथ अगर उनके रिसर्च एंडेवर्स या रिसर्च इंटरेस्ट हैं तो GIS इज़ द बेस्ट टूल दैट दे कैन यूज़. एंड विद अ फुल फ्लेज्ड कोर्स, विद अ फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम इन GIS, तो ये बहुत उनको हेल्पफुल होगा. तो मिस्टर बसाम, आप अपने करियर प्रोस्पेक्ट में बताएं कि जब आप इस फील्ड में गए थे आपने कहाँ यू कैन से बेसिकली कहाँ पे लगी जॉब्स, कहाँ पे आपको आगे जाके पता चला कि यहाँ पर भी जॉब लग सकती है, और क्या आप करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं? इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्योंकि जब हमने बैचलर्स किया था तो इतनी जिस तरीके से अभी ये बहरिया ने ये जो प्लेटफॉर्म पे अभी हम बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इस इशू को, तो इसी तरीके से जब व्हेन वी वर स्टार्टिंग बैचलर्स तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इनके बारे में. तो जब व्हेन आई ग्रेजुएटेड तो फर्स्टली तो आई वाज लुकिंग फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. कोविड का वक्त था तो देयर वाज इम्पॉसिबल टू गेट जॉब्स एट दैट टाइम. तो इनिशियली आई गॉट दिस जॉब एट GIS एट अ कंपनी इस्लामाबाद. तो आफ्टर दैट आई वर्क देयर फॉर 1 ईयर. तो उसमें मैंने डिफरेंट के GIS की एप्लीकेशंस किस तरीके से बनती हैं. अच्छा, GIS इज़ नॉट ओनली अबाउट असेसमेंट्स और कि किसी तरीके से क्लाइमेट के चेंज को या जियो फिजिकल या जियोलॉजिकल मॉडलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, बल्कि इट इज़ मोर देन दैट कि अभी इस वक्त पे GIS जो बेसिकली एक डाटा बेस सिस्टम है, जिसमें डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो इसको एज अ डाटा बेस के तौर पे यूज़ करती हैं कि हाउ दे कैन इम्पोर्ट देयर डाटा, उसको मीनिंगफुल वे में आप मैप्स के अंदर विजुअलाइज कर सकते हैं. इंटरनेशनली भी इसकी बहुत रिकग्निशन और जॉब्स हैं. तो ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि GIS में इंटरनेशनली ना एज मैडम हाईलाइटेड के मास्टर्स प्रोग्राम, तो दे आर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर द जियो इन्फॉर्मेटिक्स और रिमोट सेंसिंग एंड GIS. फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, लाइक एरास्मस एक बहुत फेमस स्कॉलरशिप है यूरोपियन. तो इसमें नासा फंडेड या स्पेस एजेंसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की जो फंड करती हैं. तो यूरोप के अंदर आप मास्टर्स या अपना PhD परस्यू कर रहे हैं, ठीक है. तो इस एक करियर तो ये है कि आजकल वैसे भी लोगों को इंटरनेशनल एजुकेशन का ज़्यादा रुझान हो गया है. तो आई थिंक एक तो ये पॉइंट है कि इफ़ यू वांट टू गो इंटरनेशनली विदाउट पेइंग अ फी, आपको फुली फंडेड आपको स्कॉलरशिप्स इजीली अवेलेबल होती हैं. सेकेंडली, अगर आप दूसरे नेशनल लेवल पे देखें या मैं कहूँ तो इस वक्त पे एज वी आर डेवलपिंग कंट्रीज़, तो हमें इसकी नॉलेज ऐसे ऐसे बढ़ रही है. तो डिफरेंट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में लाइक NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दे ऑल्सो यूज़ रिमोट सेंसिंग एंड GIS टेक्निक्स, ठीक है, को वो प्रिडिक्ट करने के लिए. या आप सुनामी वेव्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन केस अगर सुनामी आता है तो उसकी वेव्स कितना एरिया इम्पैक्ट कर सकती है, तो उसकी बेस पे आप अपनी प्लानिंग को वो कर सकते हैं. तो ये जो चीज़ है ये आपके करियर के ये कि आप किसी ये लाइक NDMA और किसी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे जैसे डॉन न्यूज़ ये भी मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं. इलेक्शंस के मैप्स तैयार होते हैं. आपके जो प्राइवेट कंपनीज़ में अगर हम आ जाएँ तो फार्मास्यूटिकल्स हैं और डिफरेंट अदर कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ जो है जियो डाटाबेस इसको यूज़ करती हैं कि उनके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ सेल हो रहे हैं. तो उनके जो
फिर अगर हेल्थ सेक्टर में हम देखें तो एज मैडम एलिया हाईलाइटेड कि कहाँ जो बीमारी ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, और वो कितना उसने इम्पैक्ट किया है, तो ये सारी चीज़ों के लिए तो GIS और रिमोट सेंसिंग यूज़ हो रही थी, तो इनमें भी इसका जो करियर प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। मिस एलिया, तो आपके बारे आप क्या सोचिए इस चीज़ के बारे में? लाइक फॉर एग्जांपल वो हेल्थ केयर सेक्टर वाली बात आपको सरप्राइजिंग लगी कि यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है, तो और क्या आपको पता चला जब आप भी अपने जॉब सेक्टर में गई थी? देखिए, सबसे बेसिक जो हमें एप्लीकेशन नज़र आती है वो तो हमारी होती है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, पाकिस्तान में भी एंड एवरीवेयर एल्स ओवरऑल, हाँ, ग्लोबली। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंसल्टेंसीज़ में आपको GIS एक्सपर्ट्स की, GIS एनालिस्ट की जॉब्स ऑफ़र करती हैं। GIS डेवलपर्स की जॉब्स आजकल बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर फील्ड है GIS डेवलपर्स की, जो आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस में बहुत फ्रीक्वेंटली वैकेंसीज में आपको नज़र आती होगी, आई एम श्योर। GIS डेवलपर इज़ अ वेरी मतलब एक इस तरह की ये जॉब है कि आप ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप देखेंगे तो बैक एंड पे कुछ ना कुछ वर्किंग GIS में हो ही रही होती है, बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट कि हम मैपिंग कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारी कोडिंग भी होती है, उसके पीछे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यूज़ हो रही होती हैं। वी हैव पाइथन, वी हैव R में बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है GIS की। तो देयर इज़ दैट, एंड उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स में, बिकॉज़ वी नो कि ट्रांसपोर्ट, नेविगेशन, लॉजिस्टिक्स, इसमें तो GIS यूज़ होता ही है। सबसे बेसिक जो हमें अपने हाथों में एप्लीकेशन नज़र आती है उसकी वो है गूगल मैप्स की, ठीक है। तो वी नो कि उस सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी GIS का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन जैसे पाकिस्तान रेलवे है, उसमें GIS एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा स्कोप है उसका। सो स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली अप्लाई देयर। इसके अलावा डिफरेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं which are working through GIS and remote sensing. WWF is a very big name, and they offer GIS and GIS positions in their water department, in their wildlife department, in their environmental department. So बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत। और आप किसी भी सेक्टर में जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में आप देखें तो आपको कहीं ना कहीं GIS का रोल नज़र आएगा ही। पाकिस्तान में थोड़ा देर से आया है, बट इट हैज़ बिन लाइक दैट ग्लोबली, बिकॉज़ इट इज़ अ ग्रोइंग फील्ड है GIS एक, और इसका स्कोप और इसकी एप्लीकेशन सिर्फ इंक्रीज़ ही होती है, यू नो, इट नेवर डिक्रीजेस। ऐसा नहीं है कि आज तो स्कोप है GIS का बट नेक्स्ट 5 years में कम हो जाएगा, वो स्कोप सिर्फ इंक्रीज़ होगा, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द एडवांसमेंट्स दैट इट कैन मेक, और कि इसको किस तरह से मज़ीद यूटिलाइज़ कर सकते हैं लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो इट इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज़, आई बिलीव। बिल्कुल, जैसे एलिया ने अभी ज़िक्र किया कि हमारे पास जो है प्रोग्रामिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है, तो हम जो अपने कोर्स पढ़ाते हैं BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS में, जो हमारी जो एक सिलेबस है उसमें हमारे पास पाइथन, C++ और ये सारे कोर्स जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सब पार्ट है हमारे कोर्स का, इस प्रोग्राम का पार्ट है। इसी तरह से हम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट को कराते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, GIS की एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स। सो व्हेन द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू जॉइन, वो ये सब कुछ हमारे पास करेंगे। तो इसमें इवन वो स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर साइंसेज में इंटरेस्टेड थे एंड समहाउ नहीं उनको वहाँ पे जा सके, एडमिशन ले सके, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन करें BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS में। तो ऑलरेडी अगर उनके पास एक नॉलेज है तो उसको वो अपना वही पैशन या वही शौक़ जो है वो GIS के थ्रू भी पूरा कर सकते हैं। और हमारे सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं कि ये कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज़ हैं, प्रोग्रामिंग भी हम सिखा रहे हैं, मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं, इवन हम लॉज को भी लेके चलते हैं, स्पेस लॉज किस तरह से, वो सब भी आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। सो इट्स अ वेरी डाइवर्स कोर्स, और इसमें आपका हर एस्पेक्ट जो इंटरनेशनली इस वक्त रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब इंडस्ट्री के लिए या किसी भी रिसर्च के लिए, वो सब हमने अपने कोर्स वर्क के इस 4 year के टेन्योर में पूरा कंप्लीट कवर किया है। And not just that, even मैंने तो पर्सनली एनवायरमेंटल साइंसेस किया हुआ है, तो मेरे फाइनल सेमेस्टर में भी एक GIS का कोर्स रखा हुआ है, और इवन तो उसमें बस बेसिक चीज़ें ही सिखाई हुई है, बट स्टिल इट वाज सो इम्पोर्टेंट कि हम ईज़िली सिंपल चीज़ों को हम मैप आउट कर सकते हैं। और नॉट जस्ट दैट, इवन इतनी सी जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उस एक कोर्स में,
उस पर थीसिस भी हो सकता है और थीसिस में भी काफ़ी काम आए। तो जस्ट लाइक दैट इमेजिन कि अगर एक चीज़ जो इतनी इम्पोर्टेंट निकली, वो पूरा कोर्स और पूरी डिग्री ही निकाली उससे रिलेटेड। सो आई थिंक इट्स पर्सनली वेरी इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट ये चीज़ भी है कि हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि बहरी यूनिवर्सिटी ने ही अलग से एक बैचलर्स डिग्री निकाली है। सो मिस्टर बसम, एज एन अलमनाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा है एट बहरी यूनिवर्सिटी? एट बहरी यूनिवर्सिटी जब मैंने स्टार्ट किया था तो इनिशियली जैसे काफ़ी पेरेंट्स को इशू था फीस वगैरह का। तो व्हेन स्टार्टेड तो आई वाज टॉपर ऑफ माई बैच, तो हर सेमेस्टर में मैं अच्छी पोजीशन लेता था। तो बहरी यूनिवर्सिटी मुझे मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती थी, ना मुझे कहीं अप्लाई करना पड़ता था। तो इस ये एक पॉइंट ये भी है जो इससे मुझे बहुत मतलब बहुत आसानी मुझे मिली ना। तो मेरे 50% स्कॉलरशिप, कभी 75% स्कॉलरशिप फ्रॉम बहरिया मुझे मिला करती थी। तो जिसकी वजह से एक तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर से बर्डन उस वक्त पे बहुत रिलीफ उनको मिला। सेकेंडली बहरिया की जो मुझे सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं, जैसे उनकी लैब फैसिलिटीज़ हैं और उनका जो कंपनीज़ की इन्वॉल्वमेंट है विद डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ एट बैचलर लेवल हम मिला करते थे। फिर हमारी जो फील्ड्स होती थी इस्लामाबाद, हम नॉर्दर्न एरियाज़ में, वी आर इन साउथ, तो हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते थे, डिफरेंट कंपनीज़ को विज़िट करते थे, NGOs को विज़िट करते थे। तो वो जो एक हमें इन्वायरमेंट दिया गया प्रोफेशनल्स के साथ मिलने का, जिसकी वजह से हमें इन फ्यूचर अपनी जॉब्स वगैरह में हमें बहुत हेल्प आउट हुई। फिर दूसरा, हमारे टीचर्स ने हमें डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के बारे में गाइड किया कि किस तरीके से आप, तो मुझे एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एट माई बैचलर्स लेवल मुझे मिली थी, तो अराउंड $2000 की ना। तो उसकी उस वक्त पे, तो वो एक फॉर मी दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो ये मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया। एट दैट टाइम पाकिस्तान में शायद बहुत कम लोगों को चीज़ों को पता था, तो लेकिन आई पार्टिसिपेटेड इन दैट कॉम्पिटिशन। सो अदर देन दैट, बहरी यूनिवर्सिटी आपको डिफरेंट अदर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर आप अप्लाई करवाते हैं। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट, जो मेन चीज़ है ना, आपका जो मेन आपका जो करियर आपको उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका प्रोफेशनल्स के साथ या द कंपनी के साथ कितनी इन्वॉल्वमेंट है। यही आपका करियर डिसाइड करती है, आपकी थिंकिंग डेवलप करती है जो स्टूडेंट्स की। when आप एक या तो एक क्लासरूम में बैठे हैं, आपकी जो मैंटेलिटी है वो एक बाउंड रहती है until or unless जब तक आप किसी प्रोफेशनल के साथ यू इंटरेक्ट विद प्रोफेशनल्स। और जो बहरी यूनिवर्सिटी में जो जिस तरीके से इवेंट्स जो होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स आते थे और हम वी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद दैम। तो उसने हमें काफ़ी हेल्प आउट किया। तो दैट्स वाई कि मेरी ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद मुझे जॉब ऑफर हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बीइंग एज एन एलुमनाई ऑफ बहरिया, आई एम वेरी हैप्पी मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया। और मिस एलिया, आपका एक्सपीरियंस कैसा है बहरी यूनिवर्सिटी? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जस्ट लाइक बसाम हाईलाइटेड कि ऐसा नहीं है कि बहरिया सिर्फ एक थियोरेटिकल नॉलेज आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि चाहे वो लैब फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो फील्ड वर्क हो, ये उसके थ्रू आपको हैंड्स ऑन नॉलेज देती है। जैसे लैब में बहुत ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, स्पेशली GIS रिलेटेड क्योंकि हम बात कर रहे हैं। तो GIS के मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जो आजकल यूज़ होते हैं, लाइक जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं पॉपुलरली, तो वो सारे आपको लैब में अवेलेबल मिलते हैं यहाँ पे। एंड इट्स नॉट लाइक यू हैव टू bring your own equipment, your own laptops, you have to do nothing. You just have to come to the classroom and you have to go to the lab and they'll provide you everything there. इसी तरह बैचलर्स में भी हमारे we used to have these field visits जिसमें बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज मिलती थी। इट्स नॉट जस्ट कि हम एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम जाके उन चीज़ों को फिज़िकली देखते थे। एंड अगैन जैसे बस सामने भी बताया आपको कि इंडस्ट्री विज़िट्स करते थे। सो जैसे जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होंगी, they'll meet with the professionals and they'll let you make connections जो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं in your career, ठीक है। And also one of the major I think plus points here is the faculty. They are very very helpful हर चीज़ में। and it's not just कि जहाँ तक आपका कोर्स है सिर्फ वहीं तक आपकी हेल्प करेंगे, उसके बाद भी आपको जब रिसर्च में आपको कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी होगा, they are always there to guide you. मैंने अपना फर्स्ट रिसर्च पेपर अपने बैचलर्स में ही पब्लिश किया था, विच वाज ऑल थ्रू द माय सुपरवाइज़र।
और देन फिर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कैश अवार्ड भी मिला था उस रिसर्च पेपर पे, सो दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एट दैट लेवल। उसके बाद मेरा मास्टर्स यहाँ से परस्यू करने का डिसीजन भी मैंने इसीलिए लिया था बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन माई बैचलर्स, एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने यहीं से कंटिन्यू किया बिकॉज अगैन वेरी गुड प्रोफेसर्स, वेरी गुड फैकल्टी, वेरी गुड फैसिलिटीज़, और आपको मतलब रिग्रेट नहीं होता अपने डिसीजन पे, यू नो, बिकॉज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ये होता है, कंफ्यूजन होती है इनिशियली स्पेशली बैचलर्स में कि यहाँ जाएं यहाँ नहीं जाएं, क्योंकि गाइडेंस नहीं होती इतनी ज़्यादा। बट ये है कि मुझे एटलीस्ट फॉर मी जॉइनिंग बहरिया वाज नेवर अ रिग्रेट, Regret. सो आई थिंक इट्स It was गोइंग like- टू बी अ गुड डिसीजन। तो मिस्टर बसाम, जो इसके लाइक फॉर एग्जांपल जो रिसर्च एप्लीकेशंस होती है और लाइक फॉर एफिलिएशंस होती है डिफरेंट कंपनीज वगैरह के साथ, आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? रिसर्च पे अच्छा, लकीली मेरा जो दोनों मेरी कंपनीज थी वो R&D, आई वाज इन R&D डिपार्टमेंट्स, तो मेरा रिसर्च के साथ ज़्यादा एफिलिएशन रही है। अच्छा, मुझे एक बेनिफिट और जो रहा था कि एट द बैचलर्स लेवल मेरी भी एक पब्लिकेशन, जैसे एलिया ने हाईलाइट किया, तो मेरी भी एक पब्लिकेशन उस वक्त की थी जो मुझे बाद में जॉब लाइफ में भी हेल्प आउट हुआ। तो जो मेरे प्रोफेसर्स थे उन्होंने मुझे एट बैचलर्स लेवल ही उन्होंने मुझे गाइड किया किस तरीके से रिसर्च पब्लिकेशन की जा सकती है। तो इसीलिए जब मैं अपने जो मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन की, तो मुझे अब रिसर्च राइटिंग में यानी रिपोर्ट राइटिंग, और ये क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो आपको अपनी, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट, तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको डिफाइन करना होता है कि व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, कि डाटा तो कोई भी एक्वायर, कोई लेमैन भी आपको ला देगा, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़, आप उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आप निकाल रहे हैं उसमें, वो मैटर करता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहरिया की तरफ से हमें मिली। तो जो मैं रिसर्च की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, तो इस वक्त पे आई थिंक मोस्ट इजीली आप अगर पब्लिकेशन साइट पर जाना चाहें, तो रिमोट सेंसिंग डाटा में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको फ्रीली अवेलेबल होता है मोस्टली डाटा। कुछ बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। अब रेजोल्यूशन, अच्छा रिमोट सेंस सैटेलाइट डाटा है, तो रेजोल्यूशंस पे डिपेंड करता है कि कितना वार्सली, मतलब उसके पिक्सल्स कितने रेजोल्यूशंस के हैं ना। तो अब जो नॉर्मली 30 मीटर जैसे कुछ सैटेलाइट्स हैं, लैंडसैट, ठीक है, लैंडसैट फ्रीली अवेलेबल, ये नासा का तो वो फ्रीली अवेलेबल होता है उसका डाटा। उसकी बेसिस पे हम बहुत सारे एनालिसिस कर लेते हैं। तो लोग अपने रिसर्च वर्क्स में, अपनी थीसिस में, इससे ये बहुत, इस फील्ड का एक ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि इसमें आपको फ्रीली अवेलेबल डाटा आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो आप अपनी रिसर्च में उसको कर सकते हैं। और इस रिसर्च की बेसिस पर आपको बाहर, आप कभी अपने PhD आपका परस्यू करना चाहते हैं या अपना मास्टर्स, तो आपको उसमें बहुत आसानी होती है। और मिस एलिया, आपको क्या पता है लाइक रिसर्च से रिलेटेड और रिसर्च एफिलिएशन से रिलेटेड, लाइक कहाँ तक किए जा सकता है? रिसर्च एफिलिएशन से देखिए, लिमिटेशन तो कोई नहीं है, इट कैन ग्रो एज मच एज यू वांट, ठीक है, आप जहाँ तक जाना चाहें रिसर्च में आप जा सकते हैं, देयर आर नो लिमिटेशंस एक्सेप्ट, जाहिर है कुछ फंडिंग इश्यूज होते हैं एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स, बट अगर सिर्फ हम ये देखें कि रिसर्च कहीं जाके रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं है। रिसर्च आप जहाँ तक आपकी थिंकिंग जाएगी, रिसर्च वहीं तक जाएगी, ठीक है। सो एंड अगैन लाइक रिमोट सेंसिंग एक ऐसी फील्ड जिसमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज यू नो इसमें सिर्फ लाइक जनरल लोकेशन डेटा या जोग्राफिकल डेटा नहीं आता, इसमें आप मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत सारे लाइक डेटा माइनिंग एंड यू नो आजकल जैसे बिग डेटा का बहुत ज़्यादा रोल है, तो बिग डेटा को भी आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बिग डेटा इन मशीन लर्निंग इन GIS इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एंड इट्स इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च अब आ रही है, तो स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। रिसर्च एफिलिएशंस की जहाँ तक बात है, तो बहुत सारे पब्लिकेशन हाउसेस हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली जर्नल्स इसी के लिए लाइक रखे गए हैं फॉर रिमोट सेंसिंग, तो आप उन बिल्कुल यू कैन गेट योर रिसर्च पब्लिश देयर, एंड यूनिवर्सिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है इन चीज़ों में, to get your research published in any journal that you want. Free भी होता है कभी, and sometimes you have to pay, which again the university also contributes in that. If you are publishing with them, अगर आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो फिर definitely उसमें वो होता है।
Acha, so well, thank you, Mr. Bassam, Miss Elia, for being our guest today. Thank you, Dr. Shaista, for being here with us. Thank you to our guests or जो भी अभी viewers हैं हमारे. As you can see that this is our new field at Bahria University. So please come join us. Yeah, there's data and there's more information about it available on our website at bahriauniversity.com. So please come and please join us. Thank you. Thank you. Thank you. You are watching BUTV Karachi.